Harinder, we are going to start your snap for a chemistry Yes, sir. Yes. for BPSC interview. Yes, sir. Okay, tell me something about the spontaneity of the processes. For spontaneity of the process, the value of delta G, change in Gibbs free energy, must be negative. Or delta G is equal to delta H minus T delta S. So there are so many criteria for negative value of delta G. Like if delta H is negative and delta S is positive, then delta G must be negative. If delta H is negative, Okay, fine. What is this delta G? Delta G क्या होता है? change in Gibbs free energy, or Gibbs free energy is the energy used in energy change in Gibbs free energy, sir. What is Gibbs free energy? Gibbs free energy is energy used in work. Used in? Used in work. Then what Actual energy used in work. Okay, what is difference between Gibbs free energy and Gibbs Helmholtz function or work function? Work function is path dependent function, and while Gibbs energy is path independent, that is, it only depends upon initial and final state of the system. दोनों ही path function नहीं है, दोनों ही state functions हैं, whether it is a Gibbs or whether it is a Gibbs work function. वर्क फंक्शन भी पाथ फंक्शन नहीं है सर? नहीं. It has a very close relationship between them, work function and Gibbs free energy. That close relation, can you tell me? Sorry sir, no, not aware about this. Okay. Do you know something about Compton effect? No sir. Statistical thermodynamics के बारे में सुना है आपने कभी? सुना तो है सर. पता है कुछ? उसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो नेट के टाइम में पढ़ा था, उसके बाद फिर मैं दोबारा कभी इसको देखा नहीं है. नहीं, पर इंटरव्यू के लिए आए हो आप, तो बिना पढ़े आ गए हो, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? सर लेकिन ये टॉपिक में तो ऐसे इनका है नहीं, मेनली वो फोकस करेंगे सर जो टॉपिक ये बीटेक वाले फर्स्ट ईयर में है. You are going for the interview for the post of assistant professor. जी. So assistant professor should have a knowledge about all the aspects related to the chemistry. Okay, fine. क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में कुछ पता आपको? थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो है. क्या बेसिक आइडिया आपको? जैसे एनर्जी इन 1D बॉक्स and okay, leave it. What is molecular spectroscopy? in molecular spectroscopy we study about interaction of electromagnetic radiation with matter. Molecular spectroscopy may be like UV visible spectroscopy, Raman, Mossbar, NMR, X-ray. Okay, in visible spectroscopy, which type of the transitions takes place?
In visible spectroscopy, UV visible spectroscopy occurs. The transition takes place. What type of transition takes place? What type of transition takes place in visible spectroscopy? Like N to pi star, sir, and Electronic transition takes place here in yes, visible spectroscopy. yes, electronic transition. Okay, in visible spectroscopy, we generally get a broad bands, Yes, sir. but it is not so in the microwave spectroscopy or in IR. Why would we get a broad bands in UV and visible? Due to less number of transitions, band is broad. लेस नंबर ऑफ ट्रांजिशन से तो इंटेंसिटी फर्क पड़ती है. इंटेंसिटी कम ज्यादा हमारे को लेस नंबर ऑफ ट्रांजिशन से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशन से पता लगेगा. ओके, मोजर बार आप कह रहे थे कि मोजर बार मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है, तो मोजर बार स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे डील करती है? गामा रेडिएशन से डील होती है. ये गामा रेडिएशंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं? Some ये activated nucleus like CO, cobalt and iron 57, cobalt 60, where the nucleus is in metastable state, it emits gamma radiation. Okay, can you tell me the active nucleus in the Moser bar? Which are the active nuclei in the Moser bar spectra? Active nuclei means highly energetic nuclei. हाई एनर्जेटिक नहीं, कौन से न्यूक्लियस के बारे में हम पता कर सकते हैं मोजर बार में? वही एक्टिव न्यूक्लियस कहे जाएंगे. Fe57 सर, cobalt 60 ये सोर्स है एंड SN119 वाला आइसोटोप्स. ओके, विस्कोसिटी के बारे में कुछ पता है आपको? क्या सर? विस्कोसिटी के बारे में कुछ पता है? Yes, sir. Viscosity means cohesive force between liquid molecules which interfere in a flow of liquid. These viscosity operates between liquid layers. It slow down its speed. If viscosity also is affected by hydrogen bonding. If hydrogen bonding is intermolecular hydrogen bonding is more, then viscosity of a compound or solution is more. Two type of viscosities are there: kinematic and dynamic. Yes, kinematic viscosity and dynamic. Can yes. you tell me something about these kinematic viscosity and dynamic? Okay. Okay, ये सब तो सिलेबस में हमने कभी नेट में भी नहीं पढ़ा. What are buffer solutions? Buffer solution are those solutions which resist the change in pH upon addition of a small amount of acid or small amount of base. Biologically, where they are important? Yes, sir. Our blood is also a buffer solution. Okay. Any electrochemical phenomena? Can you tell me? At which part, sir?
electrochemical phenomena, any electrochemical phenomena. Do you know what are electrochemical phenomena and their examples? Like reaction between CuSO4 and Zn, aqueous solution of CuSO4 and ZnS4 and Cu solid. This is an electrochemical reactions. We have given some special name to this when it forms a. This is an example of electrochemical cell. Here zinc acts as anode and copper acts Which as type of cathode. cell? कोई नाम दिया हुआ है इसको हमने? A galvanic cell या voltaic cell. Galvanic cell. Galvanic cell और Daniel cell में क्या फर्क रहता है? Galvanic cell. In galvanic cell, concentration of electrolytes used is taken as 1 mole per liter, and then Daniel cell called galvanic cell. Lambert's beer law क्या होती है? Lambert A is equal to epsilon C into L, where C is concentration of solution and L is path length. So absorbance depends upon concentration of solution and path length. Epsilon की values for the intense transition, उसकी range पता आपको? The value of epsilon for the intense transitions. Sorry sir, not aware of this. Okay. Can you tell me some heavy metals? Heavy metal, like those metals which have higher atomic weight, like Pb, uranium. These are example of heavy metal. Heavy metals are the presently it is a cause of, it is a serious problem in a water is polluted by heavy metals. How we can remove these heavy metals from a water? Like cadmium, lead. These metals are. How we can remove these heavy metals from a water? Yes. Can you tell me the process which are involved in the? Yes. हाँ जी बताइए. These metals can be removed by RO, but not. ये RO क्या है? नहीं, reverse osmosis. Reverse osmosis. Okay, can you tell me the basic processes involved for the extraction of metals? In extract metal, like mainly 3 steps: concentration and reduction and then refining. In concentration, there may be physical and chemical, like froth flotation, magnetic separation, and gravity separation and leaching. And in chemical, it is calcination and roasting. While reduction of metal oxide into metal, many processes involve, like smelting and reduction, and many methods like chromatography etc. are used. What is Mond's process? In Mond's process, nickel is purified, Ni plus 4Co, impure nickel plus 4Co, 60 to 80 degrees Celsius temperature, NiCO का whole vapor, and upon it heating about 180 degrees Celsius
it decomposes to give pure nickel. Okay. Can you give me the examples of the chemical bonds in which d pi p pi bonds are formed? D pi like SO2, SO3, SO4 2 minus, ClO4 minus. In all these molecular ions, p pi, d pi is present. D pi. Okay. Do you know anything about AQI? AQ, I. sir, about air pollution. AQI की फुल फॉर्म पता है? Sir, air quality index. एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ एयर? Not exactly sure, sir. ओके, पटना आपने देखी नहीं, आपने सिटी की कभी देखी नहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स? जहाँ पे हम देखा रहते हैं वहाँ तो पे से क्वालिटी ऑफ एयर और क्वालिटी ऑफ वाटर तो जरूर देखनी चाहिए हमारे को। यस सर, तो दिल्ली का तो 250 AQI से ज्यादा ही रहता है। 250 से ज्यादा रहता है। तभी यस करके दिल्ली में 10 साल पुराने व्हीकल से बंद कर दिए इन्होंने हैं। जी। ओके, व्हाट इज आइसोटॉपिक, व्हाट इज द effect of isotopic substitution in a rotational spectra? So due to isotopic substitution, if less atomic mass substituted by more atomic mass, then the value of mu decreases, and ये म्यू क्या है? reduced mass, reduced heat. Okay, then और how then it affect the frequency nu is equal to 1 by 2 pi under root k by mu. So if lesser mass is substituted by more atomic mass isotope, then the frequency मैं decreases. IR की नहीं बात कर रहा, मैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या फर्क पड़ेगा? ओके, व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी? हाफ एच न्यू। 0 पॉइंट एनर्जी डिफाइन करो। ये हाफ एच न्यू क्या चीज है, ये मेरे को क्या पता? There are many energy levels like n is equal to 0, 1, 2, 3, 4. Then if n is equal to 0, ground state energy level, the value of n 0, then E is equal to n plus half bracket h nu होता है, then E0 is equal to half h nu. ओके, चलो ठीक है हरिंदर, मैं आपको आपके फीडबैक्स दे रहा हूँ इंटरव्यू के। जी देखो, ऐसा है कि जब भी इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चंस जनरली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रहेंगे। जी ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव नॉलेज तो चेक करने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस रखते हैं। जी ठीक है, प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिकली मेरे को आप वीक लग रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपने नहीं पढ़ी है। जी जी ठीक, और कोई भी हम चीज अगर थियोरेटिकल स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है, सपोज जी मैंने पूछा था कि वाटर से हैवी मेटल्स रिमूव करवाने हैं हमने, ठीक है, वो हम बाय द जी प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन रिमूव करा सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर द सेपरेशन। यस यस ठीक सर है, बाय यस द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन हम मेटल्स को रिमूव करवा सकते हैं। जी ठीक है, तो इस करके मतलब कि आपको ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जी और नेक्स्ट बात है कि ऐसे है ना, बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में ये सारे टॉपिक्स हैं, क्वांटम भी है, स्टैटिस्टिकल भी है। ठीक है, आपके
के सिलेबस में नहीं है, तो बच्चे क्या कहते हैं, अगर सपोज, क्योंकि ऐसे एग्जामिनर का हमारे को नहीं पता वो किस बैकग्राउंड का आएगा, जी जिस बैकग्राउंड का आएगा उसी बैकग्राउंड पे उसने ज्यादा फोकस करना है। हाँ जी जी ठीक है, सपोज इट विल बी फ्रॉम अ फिजिकल फील्ड, तो फिजिकल जी में वो क्वांटम और स्टैटिस्टिकल के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा, थर्मोडायनामिक्स के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक जी है, मेरे को जो ऑब्जर्व हो रहा है कि आपकी इनऑर्गेनिक जो है दैट इज फाइन। ठीक है, जी इनऑर्गेनिक आपकी अच्छी है, पर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत वीक है, फिजिकल आपकी वीक है। जी ठीक है, थर्मोडायनामिक बच्चे जी और वर्क फंक्शन में सिर्फ एक ही फर्क होता है। जो वर्क फंक्शन होता है वो तो सिर्फ यही बताता है कि मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, पर जी जो होता है, डेल्टा जी, दैट टेल्स अबाउट द मैक्सिमम वर्क अदर देन द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, अच्छा जो जी डेल्टा जी की वैल्यू होती है दैट इज डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी। जी ठीक है, ये बीएससी में आपको पता लगेगा, तो ये प्लस वन प्लस टू लेवल में ये चीजें नहीं आती। यस ठीक है, ये थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम, स्टैटिस्टिकल, इनके थर्मोडायनामिक्स और क्वांटम तो बीएससी की सारी देखो। स्टैटिस्टिकल, बस स्टैटिस्टिकल क्या है, स्टैटिस्टिकल्स में हम थर्मोडायनामिक्स को माइक्रो लेवल पे ले जाते हैं। यस सर ठीक है, थर्मोडायनामिक्स से हम मैक्रो मैक्रो सिस्टम से डील करते हैं, बट वी व्हेन शिफ्ट फ्रॉम द मैक्रो टू द माइक्रो सिस्टम्स, देन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोडायनामिक्स आर स्टडीज एट द माइक्रो लेवल, उसको ही हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। यस ठीक है, तो ये कोई, अगर आपने नेट क्लियर किया हुआ है तो ये कोई बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं नहीं मैं पढ़ा सर। तो समझ, लेकिन टाइम हो गया ना, तो वो एक्चुअली स्टैटिकल तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक होगा, थोड़ा बहुत मतलब इधर बेसिक तो उधर आपको देख पता करके। होना चाहिए ना। जी और सर ठीक है, एक और क्वेश्चन था, मैं PhD कर रहा हूँ। बताओ। ठीक है, पीएचडी में कर रहा हूँ, तो मैं बताऊं कि नहीं, जस्ट कोर्स वर्क हुआ है तो फिर कोई फायदा उसका किसमें होगा या? किसमें कर रहे हो पीएचडी? मैं इनऑर्गेनिक से ही कर रहा हूँ, ये कहाँ से? सिंथेसिस एंड कैरेक्टर, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, ओके, मतलब पटना से ही। जी सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ। सम नोबल complexes लाइक कोबाल्ट निकल के साथ। नहीं, तो नोबल मैं मेटल ऑक्साइड्स। हाँ, नोबल मेटल्स लाइक कॉपर प्लेटिनम, ये सब जो है। नहीं, क्या मतलब कि आप बना क्या रहे हो, नैनो पार्टिकल्स बना रहे हो? नहीं, नैनो पार्टिकल एससी बेस बना रहा हूँ। ओके। जी नहीं, अगर आपने पीएचडी के टॉपिक पे बताया तो वो फिर उसके ऊपर भी स्ट्रेस करेंगे। ठीक है, कि जो आप, जो टॉपिक आपका मैंने उसके बाद। कोर्स पर जो भी किया है वो सब ऑनलाइन हुआ था, कोरोना के टाइम में थोड़ा डिले चल रहा है, तो उसमें भी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं मेरा, तो हाँ मैं तो, उसको नहीं बताऊं, ज्यादा बेटर होगा। हाँ नहीं बताओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर बताओगे तो फिर उन्होंने आपके टॉपिक के बारे में पूछना ही पूछना, आपने ये टॉपिक क्यों चुना, कैसे चुना, क्या उसके लिए रिसर्च की, क्योंकि टॉपिक के लिए 6 महीने पहले रिसर्च होती है, हम देखते हैं काम करके कि ये काम हो सकता है, दिस दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर अवर, मतलब सोसाइटी, या किसी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होगा, तभी हम वो टॉपिक चूज करते हैं। तो जी आपने क्या करके देखा, ठीक है, कौन सा सब्सटेंस आपने सिंथेसाइज किया, उसकी क्या क्या करेक्टराइजेशन की। ठीक है, जैसे जी यही करेक्ट आपने किया अभी तक कोई करेक्टराइजेशन नहीं नहीं, कुछ नहीं किया नहीं सर। किया ना, फिर नहीं बताना तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें मैंने तो आपसे पूछा नहीं, पिछले लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, ये XRD, DLS, HRTM, FPCM, ये सारी करेक्टराइजेशन के लिए हम जाते हैं किसी भी सब्सटेंस को सिंथेसाइज करके। जी ठीक है, HRTM इसकी सरफेस मॉर्फोलॉजी के बारे में बताता है, ऐसी अलग अलग टेक्निक्स हैं ये। जी ठीक है, मतलब बीएससी के ऊपर आप स्ट्रेस दो यार। ठीक है, प्लस वन प्लस टू को छोड़ के ना, जी बीएससी के ऊपर स्ट्रेस दो अपना, और प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा, जैसे कोई पोल्यूटेड वाटर है उसमें से पोल्यूटेंट कैसे निकालने हैं हम, उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं हमारे पास। ठीक है, पोल्यूटेड एयर है, उसके लिए क्या मेथड्स अडॉप्ट करेंगे। ठीक है,
तब तो वो क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेगा फिर? जैसे मैं अपने मन से तो कैसे हम्म, मतलब पता यार कर? देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ना, ऐसे जो मैं आपको आइडियाज देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आपके ऐसे बन सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ मैं आपको आइडिया ही दे रहा हूँ मैं ये। आपके पास वैसे कुछ क्वेश्चंस टाइप का? नहीं ऐसे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे ख्याल से, टाइप्ड फॉर्म में कुछ नहीं है फॉर द इंटरव्यूज। जी ठीक है, क्योंकि ऐसे है कि इंटरव्यूज में जो आप बता रहे हो और जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें से ही बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस करके जी इंटरव्यू लेने आता है वो भी कोई स्पेशल क्वेश्चंस नहीं बना के आता कभी। जी। और दूसरी बात, जब आप आंसर मेरे को बताते हो तो बी बी स्पेसिफिक टू द आंसर ओनली। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, तो आप उसको सोचने लग गए भले डेल्टा जी ऐसे होता है वैसे होता है। ठीक है, वो नहीं हमने करना, वहां पे हमने बी स्पेसिफिक हैवी मेटल्स रिमूवल के बारे में पूछा था, तब भी आप मतलब कुछ सोचने लगे, कुछ मतलब कि मेटल्स ऐसे रिमूव कर सकते हैं, ऐसे रिमूव कर सकते हैं। वो चीज नहीं हमने कभी करनी इंटरव्यू, वहां पे फिर अच्छा आप फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि अच्छा। जितना आप ज्यादा बताओगे उतना ही जी आपसे वो ज्यादा पूछेंगे और उतना ही आप फंसोगे। ठीक है, जी। बी स्पेसिफिक टू द आंसर, और जिसके बारे में आपको पता है वही बताना है, जिसके बारे में नहीं पता वो नहीं बताना कभी। अच्छा हम्म। ठीक ठीक है, चलो करो फिर और प्रिपरेशन हरिंदर। ठीक ठीक। मैं कौन कौन सा टॉपिक करूँ जरा स्पेशली बता देंगे? जैसे एक आपने तो मैं बताता हूँ वाटर वाला क्वांटम। बता दिया। हाँ, क्वांटम करो जरूर। जी। थर्मोडायनामिक्स को अच्छी तरह देखो बीएससी लेवल तक। अच्छा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो। इलेक्ट्रो। हाँ, डैनियल और ग्रामेलिक्स में डिफरेंस भी कल तो बताया था आपने। जी। अच्छा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छी तरह देखो। पॉलीमर्स को देखो, पॉलीमर्स के, ओनली। हाँ उसके डिफरेंट मेथड्स फॉर डिटरमिन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर्स। जी। वो चार पांच जो है, मास हाँ एवरेज मोलर मास नंबर हाँ और हाँ हाँ हाँ। जेड। ठीक है, जी विस्कोसिटी का भी आंसर में यार, विस्कोसिटी का आंसर आपने बहुत अच्छा मेरे को नहीं बताया था। जी। विस्कोसिटी तो यार प्लस 1 प्लस 2 में आ जाती है। ठीक है, हाँ काइनेमेटिक हाँ। उसका बताती है वो कितना फ्लो कर रहा है, डायनामिक बताती है कि कितनी एनर्जी हमारे को देनी पड़ेगी लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए। जी। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक की जो नेम रिएक्शंस हैं सारी देख लो, बीएससी लेवल अच्छा। की। और ठीक ठीक है, प्लस समझ टू गया। लेवल की नहीं, बीएससी लेवल की। हाँ, पीएससी लेवल की। ठीक है, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, और जी दूसरा क्या कहते हैं, ये जो इफेक्ट्स हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस। ठीक है, कौन सा स्ट्रांग रहता है कौन सा वीक रहता है। जी। तो द इंटरमीडिएट्स देख लो, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स। हाँ क्योंकि वो मैंने देखा था सर, वो मैंने हाँ, देखा है। इंटरमीडिएट्स देख लो सारे। अच्छा। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देख लो। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस रहते हैं कहीं कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। जी ठीक है, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अब उसके बाद अब ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं, जो ईस्टर्स NaBH4 नहीं रिड्यूस कर पाता। जी जी। ठीक है, मतलब ये चार पांच हैं, जिंक का हो गया, लिथियम का हाइड्राइड हो गया। ठीक है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, लिथियम एल्यूमिनियम वाला। फिर जी उसके दूसरे नंबर पे सोडियम पे आता है, फिर जिंक आता है, फिर लिथियम आता है। अब ये सारे तो रिड्यूस कर नहीं सकते कार्बोनिल ग्रुप्स, कुछ कुछ लिमिटेड करते हैं। जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो स्पेसिफिक हैं वो भी देख लो, रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं वो कौन सा कहाँ पे यूज करते हैं ये भी देख लो। ठीक
ठीक है, मतलब जीओसी इंपॉर्टेंट रहेगी, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर ऑर्गेनिक बैकग्राउंड से कोई आता है। जी मेरा तो ऑर्गेनिक ही है, चलो एमएससी में। एमएससी ऑर्गेनिक है, चलो फिर तो ऑर्गेनिक स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, जी क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो किस फील्ड में काम कर रहा है, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। इस करके हम जी सिर्फ एक फील्ड पे नहीं जा सकते। ठीक है, अगर वो फिजिकल पे काम कर रहा है तो उसके उससे उस पे स्ट्रेस दे सकता है, अगर वो इनऑर्गेनिक में काम कर रहा है तो उसमें दे सकता है। केमिकल जी। काइनेटिक्स देख लेना जरूर। अच्छा केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स देख लेना। जी ठीक है, ये टॉपिक देखो अच्छे से। चलिए ठीक ठीक है, तो मैं तैयार करता हूँ। आप